Today we will start another cell organelle, that is your chloroplast. Chloroplast is also known as kitchen of the cell, but basically not chloroplast. We will start with plastids. Actually, we have to learn plastids, and in the types of plastids, we will come to learn about chloroplast separately. So basically, chloroplast is also known as kitchen of the cell. Kitchen of the cell. So first we have to learn about the plastids. What are plastids? So we will learn about plastids separately. You can say that plastid is the largest organelle in a plant cell. अगर हम किसी भी प्लांट सेल की बात करते हैं और हमसे कोई पूछता है कि प्लांट सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल्स. ओके, सो वेयर दे आर बेसिकली फॉर्म्ड, ये प्लास्टिड्स किधर हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो अक्यूरेंस क्या है इसका. तो द फर्स्ट थिंग is your occurrence, where they are basically found. So we all know that the plastids are present in all the plant cells. So in eukaryotic plant cells, and also in euglena. Do you know something about euglena? They have an organism from Ma'am, that euglena can kingdom. photosynthesize for obtaining food as well as obtain it by other organisms. Yes, very good. So these euglena, why I have put this euglena in a eukaryotic plant cells? Because these euglena are also autotrophic in nature. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक दोनों वर्ड्स ही हम यूज कर सकते हैं. तो यूग्लिना दे हैव टू मोड्स ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन, When the euglena is present in a region where there is sufficient amount of sunlight, then they perform the process of photosynthesis. Yes, Arnita, it's the mixotrophic. Yes, you can also say that they are mixotrophic. Yes. So when they are present in a place where there are excessive light, अगर लाइट होता है तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिकली बिहेव करते हैं एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव पिगमेंट सिमिलर टू द हायर प्लांट्स. यूग्लिना के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं दैट इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स. एंड व्हेन दे आर इन अ रीजन वेयर देयर इज डार्क रीजन में प्रेजेंट है जहां सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, then they undergo the other type of method of getting nutrition, that is they behave सेप्रोफाइटिकली मतलब कि ये सेप्रोफाइट्स के जैसा एक्ट करते हैं, which is one of the most important characteristics of the fungus, that they act on dead and decaying matter to get the nutrition from there. So your euglena, they are mixotrophic because they have two different modes of getting nutrition, one in the presence of light through photosynthesis and one in the absence of light, that is in the dark, by the means of saprophytically. That means from decaying matter. Clear? Okay. So plastids in all eukaryotic plant cells as well as in euglena. This is the occurrence. The second thing that I would mention here, that these plastids, they are also considered as the largest organelle that is found in a plant cell. Largest organelle of a plant cell. Largest organelle of a plant cell. ठीक है,
हमारे प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है एंड इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, हम देख सकते हैं. All the three different types of plastids, they originate from a precursor known as proplastid. Listen this statement very clearly. You know that there are three different types of plastids depending upon the pigments which is present in them and the places where they are present. That is your leucoplast. That the second one is your chromoplast, and the third one is your chloroplast. These three different types of plastids, they originate from a precursor known as proplastid. Proplastid. So all the three types of plastids, all the three types of plastids originates from प्रोप्लास्टिड्स एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल. अभी मैं एग्जांपल दूंगी. प्रोप्लास्टिड से ही ये तीनों प्लास्टिड्स बनते हैं. तो व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स? टाइप्स ऑफ plastids. So the three different types of plastids are your leucoplast, the second one is your chromoplast, and the third one is your chloroplast. So here arise a question कि how these three are different from each other. These three originates from the proplastids, but they differ. They differ that in the leucoplast they are basically colorless. Leucoplast जो होते हैं वो colorless होते हैं. They are colorless plastids and are responsible for storage. Their main function is storage of food. So leucoplasts, they are colorless plastids as well as they are found in non-green cells. Where they are basically found? They are colorless, found in non-green cells. Store food. The main function of the leucoplast is to store food. Depending upon the type of food that the leucoplast stores, they are again divided into three different types. Listen carefully what I will say here. कि leucoplast, depending upon the type of food that they store, they are again divided into three types. That is your amyloplast, elaioplast, and alluroplast. Three different types. I will write here. First is your amyloplast. Second is your elaioplast. And the third one is your alluroplast. Your amyloplast, as the name itself defines, that the amyloplast, it stores starch. ये स्टार्च को स्टोर करता है क्योंकि मैंने आपको बताया द मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ द फूड्स. So your amyloplast, it stores starch. Your elaioplast, it's responsible for the storage of oils and fats. Oils का इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ट्यूबरोज. आपने ये फ्लावर्स देखे होंगे, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है. इज इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो ये इतनी अच्छी स्मेल क्यों आती है? बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑयल जो वो स्टोर करता है. तो योर एलायोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, और वो फ्लावर्स कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ एलायोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है फैट एंड ऑयल. एंड इसका मोस्ट सिंपल और कॉमन एग्जांपल जो यू कैन इजीली रिमेंबर इज द ट्यूबरोज. तो ये ऑयल और फैट स्टोर करता है. हियर कम्स योर एल्यूरोप्लास्ट.
जब भी हम प्लांट्स आपने 9th 10th 8th में कभी भी पढ़ा होगा तो एल्यूरोन लेयर्स पढ़े होंगे, होते हैं बहुत सारे सीड्स में। तो व्हाट इज दिस एल्यूरोप्लास्ट? इट स्टोर्स प्रोटीन, क्योंकि एल्यूरोन जो है वो प्रोटीन का ही लेयर होता है, वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज योर ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। आई एम राइटिंग हियर द type of food that they store. Your amyloplast, it stores starch. Is it visible? Yes, no, ma'am. Not visible? Your elioplast, I will share this screen. Elioplast, मैं इसको क्लिक करके आपके साथ शेयर कर दूंगी. Elioplast, it stores oils and fats. And your eleuroplast, it stores protein. Stores protein. So this is the 3 types. Ma'am also write the examples. Yes बच्चा, ल्यूकोप्लास्ट में हमारे ये 3 हो गए. स्टोर स्टार्च, स्टार्च का आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई से भी सीड्स लिख सकते हो, हर जगह आपका अमाइलोप्लास्ट ही है, वो ही स्टोर कर रहा है स्टार्च. एलायोप्लास्ट का मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताया, दैट इज योर ट्यूबरोज. स्टार्च के लिए आप लिख सकते हो पोटैटो, सबसे सिंपल जो किसी भी बच्चे के माइंड में आ जाता है पोटैटो. एलायोप्लास्ट के लिए आप लिख सकते हो ट्यूबरोज. ठीक है. और जो हमारा प्रोटीन्स है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मेज. इन मेज दे हैव अ लेयर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन लेयर इज फॉर एल्यूरोप्लास्ट, तो इट्स द मेज. एग्जांपल विल बी मेज. लिख दूं मैं? वेयर शुड आई राइट? अमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल है तुम्हारा पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सब स्टार्च स्टोर करते हैं. एलायोप्लास्ट का एग्जांपल है ट्यूबरोज. एल्यूरोप्लास्ट का एग्जांपल है स्टोर प्रोटीन. एग्जांपल योर मेज. मेज का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे प्लांट्स वाले चैप्टर्स में तो वहां पर ये एल्यूरोन लेयर आएगा, दैट मींस दे स्टोर द प्रोटीन्स. ठीक है. एग्जांपल मेज. इधर भी लिख दिया है मैंने, पोटैटो लिखा है, आप उसके साथ और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, व्हीट लिख सकते हो, राइस लिख सकते हो. ठीक है, मैंने एक ही लिखा है, पोटैटो लिखा है, व्हीट. नाउ chromoplast. Chromoplasts are the type of plastids which are usually colored. Color provide करते हैं. जो आपके चिलीज का रेड कलर होता है, कैरेट का ऑरेंज कलर होता है, that is being provided by the chromoplast. So your chromoplast is responsible for yellow, for giving yellow or red color due to the presence of not chlorophyll but due to the presence of another pigment known as carotenoid. So chromoplast color देता है, ranges from yellow to orange. किसको कलर देता है? हमारे प्लांट्स का कौन सा पार्ट कलरफुल होते हैं? Flowers and fruits. ठीक है, flowers and fruits. So these chromoplasts, they also provide an important role in pollination as well as dispersal. Am I right or wrong? Help करेगा? Yes? Pollination, insects or animals क्यों attract होते हैं towards the flower? Because of the nectars as well as their colorful color, they attract the bright colors of the petals, they attract them. तो chromoplast basically its color ranges from yellow or reddish in color. मैंने yellow orange to yellow लिखा है, आप यहाँ पे reddish भी लिख सकते हो क्योंकि orange and yellow they are little bit similar to each other. ठीक है, reddish. So better I should write orange to reddish. ठीक है, better I should. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा. Ma'am, what is written after means on the downside of leucoplast? Leucoplast, colorless, found in non Colorless. colorless. Yes, they are colorless. ठीक है, Okay, color नहीं होता है, no pigment found, and because of that only they are colorless.
no pigment found, and because of that only they are colorless. Sorry. Yes. So colorless का मतलब ही यहाँ पे है there is no pigment. No pigment. Okay. So chromoplast is basically responsible for providing the bright colors to the flowers and the fruits. Color provide करने के लिए, and their color usually ranges from yellowish or reddish in color. Yellowish to reddish in color. And it's because of the presence of another pigment that is known as carotenoid. Because of presence of carotenoid. This carotenoids provide them the color that is ranges from yellow to reddish in color. ठीक है. The third thing that I would like to कि ये provide कर रहा है हमारे flowers और fruits को color help कर रहा है in pollination as well as in dispersion. They are also the site of synthesis of membrane lipids. ठीक है. Chromoplast. For example, आपने कभी चिलीज देखे हैं, आपने कैरेट देखे, हमें पता है कि उसमें डिफरेंट कलर्स हैं. तो आपका कैरेट अगर ऑरेंज कलर का होता है तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? Carotenoid. कैरोटिनॉइड तो है. अगर इसमें भी अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कैरोटीन इन कैरेट बट लाइकोपीन इन योर चिलीज. चिली कैसे होते हैं? वो भी रेड हो जाते हैं ना. ग्रीन चिलीज जो है, या दैट मींस योर क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. कैन यू से पहले चिलीज कैसे होते? ग्रीन होते. फिर अभी अगर दिन तक हम उसको लीव कर देते, घर पे भी लाकर ग्रीन चिलीज को आप रख दो, भूल जाओ, तो वो किस कलर का हो जाता है? वो रेड में चेंज होता है. एम आई राइट? और होता है कभी? होता है. That means your Is it same with mango? yes, gets converted into chromoplast. कि क्लोरोप्लास्ट हमारा क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है. and tomatoes and chilies have their red color because of your lycopene. ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था. Why tomato and chilies are red in color? Because of the presence of pigment lycopene. Okay, lycopene. So you should remember these things क्योंकि ये नीट का एक बार का क्वेश्चन है. यहाँ लिख रही हूँ. Lycopene is present in chilies and tomatoes. Okay, so you should remember this. Now, so chromoplast color की बात हो गई, and they are responsible for pollination and dispersion also. Now, after these two types of plastid, the other most important plastid which is found in the green parts of the plant is your chloroplast, and this chloroplast is green in color due to the presence of specific pigments known as chlorophyll. Yes. Ma'am, actually, I was disconnected. Will you please pardon the name for pigment in carrot and? Yes. So I'm writing here lycopene. It's present in chilies and tomatoes, but your carotene is present in carrot. Carotene in carrot, but the color of the chilies and tomato is red because of lycopene. In some of the books, you will find that this chromoplast, they have color ranging from yellow to reddish because of the presence of carotenoid and xanthophylls. मैंने यहाँ पर xanthophylls नहीं लिखा है क्योंकि ये जब भी हम आगे प्लांट्स का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर एल्गी पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो वहां पर भी ये xanthophylls आएंगे और वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट अभी मैं लिख देती हूँ कि xanthophylls भी एक टाइप का पिगमेंट होता है.
जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए. This xanthophyll provide brown color to the brown algae, red color to the red algae. So the coloring is basically because of the carotenoids and xanthophylls. Is it clear now, bacha? And these two examples are very Yes, important in ma'am. case of carrot and in case of chilies and tomato. Yes. Gargi ने something लिखा है. Ma'am, lycopene comes under chromoplast only na? Yes, yes, bacha. Yes, any other question? Ma'am, actually, just one last question. Will you please tell what is the second division in the leucoplast, that table you have drawn? This is. No, ma'am. In leucoplast, that stores food. After that was food chart. Yes. Elioplast. Elioplasts are basically, they are also colorless because there is no pigment and it's basically formed in the non-green cells. But why elioplast? Why there is differentiation? Why the leucoplast is again divided into three forms? It's because of the differentiation in the food that they store. Your amyloplast stores starch. Your elioplast is responsible for the storage of ऑयल्स एंड फैट्स. और इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ट्यूबरोज का दिया. व्हाई व्हेन वी कम नियर टू द ट्यूबरोज बहुत अच्छी सी स्मेल आती है बिकॉज दे स्टोर ऑयल्स आल्सो एंड दैट ऑयल गिव्स अ प्लीजेंट स्मेल. The third one is your aleuroplast. That means the layer of certain seeds, certain parts of the plant, they have प्रोटीन लेयर ऑन द आउटसाइड. तो वो स्टोर क्या कर रहा है? वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से 3 टाइप्स के डिविजन्स हुए हैं इन द ल्यूकोप्लास्ट. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ Yes, ma'am. Thank you. Okay. Now we will move to the chloroplast. Chloroplasts are generally green in color because of the presence of chlorophyll pigment. ये कलरलेस था, ये येलो टू रेड था, but your chloroplast, it's green in color because of the presence of chlorophyll. Green in color because of presence of chlorophyll pigment. Okay, chloroplast. So they have chlorophyll pigment, and the main function of your chloroplast is to synthesize food in the presence of sunlight or the radiation energy. So what is the chloroplast mean for? It's for the synthesis of food, synthesis of fruit from inorganic raw material in the presence of radiation or in the presence of sunlight. सो द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जब से हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया है तब से हमें ये पढ़ाया गया है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा थिंग है. उस समय हमें ऐसे कोई सेल ऑर्गेनल्स करके इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है, बट क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर द फूड फॉर द plants. So their main function is synthesis of food from inorganic substances. Okay, हमने पढ़ा था क्रोमैटोफोर्स. एक वर्ड पढ़ा था, ये मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको? क्रोमैटोफोर्स, ये मैंने कल भी पूछा था. क्रोमैटोफोर्स आर द पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एल्गी. जब भी हमने Cyanobacteria. यस यस यस. तो क्रोमोप्लास्ट जो हमने पढ़ा था, क्रोमैटोफोर्स आर आल्सो क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन एल्गी दैट आर नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन एल्गी में देखने के लिए हमें मिलता है. नॉन ग्रीन एल्गी क्या होगा? एल्गी 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. तो जो रेड और ब्राउन एल्गी होता है वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें? वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमैटोफोर्स एंड नॉट क्लोरोप्लास्ट. क्लियर बच्चा? क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया.
तो जो नॉन ग्रीन है, जैसे हमने एल्गीज पढ़ा था इन प्रोकैरियोट्स, तो वहां वो एल्गी जो ग्रीन नहीं है, ब्राउन है, रेड है, वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, ये हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ते टाइम भी पढ़ा था, जब भी हमने मेसोसोम्स पढ़ा था। ये सारी चीजें आपको रिलेट करके याद रखनी पड़ेगी, दैट इज योर क्रोमैटोफोर्स। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यस, Chromatophores are present in cyanobacteria. yes, and also some of the green algae, non-green algae, non-green algae, okay? Non-green algae means your brown algae and red algae. ठीक है? मैम उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं? अगर ग्रीन है तो वहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट है, बट अगर नॉन ग्रीन की हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि वहां पर ग्रीन के अलावा रेडोप्लास्ट होता है रेड एल्गी में, और फियोप्लास्ट होता है ब्राउन एल्गी में। सो क्रोमैटोफोर्स जो है वो नॉन ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है? ब्राउन एल्गी में फियोप्लास्ट एंड रेड एल्गी में योर रोडोप्लास्ट, ठीक है? क्रोमो से ही बना है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, बट वहां पे क्या हो जा रहा है, वहां पर हो जा रहा है फियोप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी एंड योर रोडोप्लास्ट इन रेड एल्गी। आई विल राइट इट डाउन, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ये मैं हटा दूं लाइकोपेन? ओके, लेट मी क्लिक पिक ऑफ दिस एंड देन आई विल रन। कहने का मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये फूड सिंथेसाइज करता है, बट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अलावा एल्गी में भी होते हैं, एंड एल्गी दे आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। 3 डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा नॉन ग्रीन है, जो हमारा नॉन ग्रीन एल्गी है, दे वोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, they are red in color, red algae इसलिए उसका नाम बोलते हैं, they have a pigment that is red, and the type of chloroplast that is present there is known as chromatophores, और red के लिए उस chromatophore का नाम है rhodoplast, और brown algae के लिए नाम है pheoplast. They have pigments for the process of photosynthesis, but their pigments are also different from that present in the chloroplast. जो हम डिटेल में जब भी हम एल्गी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, सिर्फ पिगमेंट्स का डिफरेंस नहीं होता है, उनके अरेंजमेंट का भी डिफरेंस होता है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी रीड देयर विद रिलेशन टू द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी. इज इट ओके? Yes, ma'am. बॉक्स में किसी ने लिखा है मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉस एंड एल्गी? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, मॉस एंड एल्गी, ये भी हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। मॉस और एल्गी क्या है? 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग चीजें हैं, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है बेसिकली। अभी मैं अगर आपको बताऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप हाउ विद द एवोल्यूशन, धीरे धीरे हमारे शेप्स कैसे चेंज हुए एल्गीज में भी, और फिर हम कैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स गए, ये पूरा एक इवोल्यूशन थ्योरी के जैसा है। इवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स में, नीड, पहले उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर उनका नीड था, वाटर चाहिए ही चाहिए। देन कम्स द ब्रायोफाइट, जिसको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, कि वो एम्फीबियंस है, वो लैंड पे सरवाइव तो करते थे, बट दे लिव नियर द वाटर बिकॉज फॉर फर्टिलाइजेशन दे स्टिल नीड वाटर, and ultimately when the angiosperms comes into existence, they have reproductive organ, that is your flower, which makes the survival of the plants without water. Getting my point? तो ये एक इवोल्यूशन के जैसा है कि कैसे धीरे धीरे प्लांट्स एग्जिस्ट किए. We will learn about mosses, we will learn about ferns, we will learn about bryophytes, pteridophytes, but पहले हमारा ये होगा, उसके बाद हम सेल डिवीजन करेंगे, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, देन फोटो रेस्पिरेशन, and then we will come for the biological classification. Ma'am, what was the function of chloroplast? Chloroplast का क्या function है? Preparation of food. Food बनाते हैं ना प्लांट्स में, they prepare food. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है. Why? Because this chloroplast, they are present in eukaryotes but only in
plant cell, not in animal cells. इस वजह से we can't prepare our own food. We have to depend upon the plants directly or indirectly for our food. So the main function of the chloroplast is to prepare food from the inorganic matter in the presence of radiation energy. Okay, now I will rub this and I will start further. Just a minute. वो भी दे दो. All the different types of microbes, whether they are bacteria, whether they are fungus, they need a specific nutrients in a specific amount in order to perform, in order to grow. So whenever we try to grow these desired microorganisms in a lab, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और एक्सीडेंटली उन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, तो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज ग्रोइंग द बैक्टीरिया दैट इज स्टेफाइलोकोकस. बैक्टीरिया को ग्रो किया था अपने लैब में कल्चर प्लेट पे. कल्चर प्लेट का मतलब होता है वो सॉलिडिफाई क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम अगार डालते हैं, और ये अगार हम कहाँ से लाते हैं, फ्रॉम द रेड एल्गी दैट इज जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया. ऐसे बहुत सारे हैं. Now here comes the question कि कुछ भी डाल दिया, थोड़ा सा कार्बन का सोर्स, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम. It's not like that. Ready-made medium for different microbes are available in the market. नेम से अवेलेबल है. आपने हाई मीडिया का नाम सुना होगा. हाई मीडिया इज अ कंपनी दैट जनरली मेक्स दिस न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. इसको हम वे करते हैं इन अ डेफिनेट अमाउंट. इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपको 100 ml न्यूट्रिएंट्स बनाना है, ग्रो करने. न्यूट्रिएंट इज फूड. जैसे मम्मा घर में कितने लोग हैं इस पे डिपेंड करके खाने का क्वांटिटी डिसाइड करती है ना, तो उधर भी हम कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बनाएंगे, हमें कितने माइक्रोब्स ग्रो कराने, हम कितने प्लेट्स में उसको पोर करेंगे. तो सॉलिडिफाई करने के लिए कि वो प्लेट इजीली सॉलिडिफाई हो जाए, हम उसमें अगार डालते हैं. अगार डालने की वजह से जैसे ही वो प्लेट्स, हम इस प्लेट में जैसे वो लिक्विड आपने पोर किया तो ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिडिफाई हो गया. अब क्या कर सकते हैं, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स. अगर आपको कोई भी माइक्रोब ग्रो करना है तो यू कैन एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम समवेयर. फॉर एग्जांपल अगर सॉइल का बैक्टीरिया मुझे ग्रो करना है, तो सॉइल का मैंने 1 ग्राम सॉइल लिया और उसको मैंने डिसॉल्व किया इन 9 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो 10 हो गया टोटल. बट अगर उसका 1 ड्रॉप भी, मतलब 1 ड्रॉप से भी बहुत छोटा, अगर मैं इसके सरफेस पे डाल के उसको स्प्रेड कर दूंगी तो इतने सारे माइक्रोब्स आएंगे, इतने माइक्रोब्स आएंगे कि यू कांट काउंट इट. आप काउंट नहीं कर सकते हो. तो हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूशन करते हैं. मैंने 1 ग्राम को अगर 10 ml में डिसॉल्व किया, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें पहले से मैंने 9 ml वाटर रखा है, इसमें से 1 ml इसमें डाल दिया. फिर एक और टेस्ट ट्यूब है जिसमें 9 ml वाटर है, फिर इसका 1 ml मैंने इसमें डाल दिया. तो वी टेक द डिफरेंट डाइल्यूशंस. तो ऐसा मैंने 5 टाइम्स किया, और जो 5th डाइल्यूशन है उसका 1 ड्रॉप या फिर 100 माइक्रोलीटर मैंने सरफेस पे डाला. एक ड्रॉप, वी हैव अ माइक्रोपिपेट, वी यूज टू पुश इट लाइक दिस, वो ड्रॉप उसमें गिर जाता है. एंड देयर इज अ स्प्रेडर. स्प्रेडर एक एल शेप्ड का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लैब्स में यूज करते हैं, स्प्रेडर बोलते हैं उसको. वो एल शेप का दिखता है, ऐसे रहता है और ऐसे इसका ये रहता है. तो ये वाला जो पार्ट है, इससे हम इसको इजीली स्प्रेड करते हैं ऑन द सरफेस ताकि स्मूथ ग्रोथ आए. तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कि आपने स्प्रेड कर दिया. अनदर टेक्निक क्या हो सकती है कि आपने न्यूट्रिएंट मीडियम का प्लेट लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम का प्लेट लिया, इसके ऊपर आपने वो न्यूट्रिएंट डाल दिया. अब मुझे मेरा डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना है, तो मैंने डिजायर्ड, मुझे पता है कि मुझे इकोलाई ही चाहिए, तो वो ये इकोलाई का स्ट्रेन हमने परचेज किया है फ्रॉम द चंडीगढ़ में जो माइक्रोबायोलॉजिकल सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है. दे हैव देयर लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी भी है वहाँ पर, माइक्रोबायोलॉजिकल लाइब्रेरी भी है. हर तरह का माइक्रोब्स वहाँ से मिल सकता है. बट ऐसे नहीं कि आपने लेटर लिखा, पैसे दिए और मिल गया. नो, अगर आपको अपने रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए होता है तो आपको वो मिलता है. यू हैव टू राइट द कंसर्न लेटर्स. फिर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर भी मैं उसको ग्रो कर सकती हूँ. वी हैव अ स्ट्रिकर, वो एक रॉड जैसा होता है और आगे के साइड जो उसका टिप होता है वहां पे एक छोटा सा ऐसे रॉड लगाया हुआ है, एकदम पतला सा वायर होता है. उस वायर से मेरे पास जो इकोलाई का कल्चर आया है, प्योर कल्चर आया है, स्ट्रेन आया है, जो मुझे पता है कि ये इकोलाई है, उसके सरफेस से हमने थोड़ा सा ऐसे लिया, एकदम थोड़ा सा, जैसे मम्मा दही जमाने के लिए इनोकुलम लेती है, थोड़ा सा पहले का दही लेती है. देखा है कभी मम्मा को दही जमाते वो कि वो कैसे जमाती है?
Yes, ma'am. यस तो वो क्या करती हैं, वो कल्चर लेती हैं, वो इनोकुलम लेती है, लैक्टोबैसिलस लेती हैं इन ऑर्डर टू add it to a new nutrient medium that is your, here it's the nutrient medium, there that is a milk. Okay, so we streak it. ये पूरा मेरा सरफेस ऐसा होता है, मुझे अगर चाहिए कि आज मुझे थोड़ा इस पे कुछ डिजाइन बनाना है तो हम इसको स्ट्रीक कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है, और ब्यूटीफुली, और हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे इन अ इंक्यूबेटर, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में इंक्यूबेटर मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, 24 आवर्स के लिए ओवरनाइट अगर हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे और नेक्स्ट डे आप आके इसको ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम द नेकेड आई आल्सो, तो आपको ये पैटर्न में माइक्रोब्स ग्रो किए हुए दिखेंगे, इसी पैटर्न में जिस पैटर्न में आपने स्ट्रीक किया है, ठीक है। बस काउंट करने के लिए आपको ऐसा कॉलोनीज दिखेगा, full on the surface of the nutrient medium, many colonies are there, many colonies. इस कॉलोनीज को हम माइक्रोस्कोप में काउंट करते हैं, बट हर एक को काउंट करना, यहाँ तो मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, वो फुल रहता है, तो छोटे छोटे से कॉलोनीज होता है, वी डिवाइड इट इन लाइक दिस, और एक पार्ट का काउंट कर लेते हैं, या फिर उससे भी बहुत ज्यादा होता है तो इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट का कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइक्रोब्स भी चूजी हैं, जैसे आप कहते हो ना मम्मा ये रोज तोरई लौकी ककड़ी ये सब मुझे नहीं खाना, आई नीड समथिंग गुड जो मुझे पसंद है, तो ऐसे ही ये माइक्रोब्स किसी भी फूड पार्टिकल से किसी भी न्यूट्रिएंट पे ग्रो नहीं करते, दे हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जब भी फुलफिल होता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बन सोर्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ temperature also, bacteria can grow at a temperature of 35 to 37 degrees centigrade, easily grow करता है, but your fungus they need a lower temperature, उनको 22 to 25 degree centigrade का temperature चाहिए होता है and a lot of moisture, and because of this only these fungal growth is mostly seen in the rainy season, क्योंकि moisture भी easily available है as well as the temperature is also low. Am I right or wrong? आप कभी इस रेनी सीजन में रोड के साइड से जाना तो आपको साइड में अगर वहां पर पानी इकट्ठा हो गया होगा तो आपको ऐसे काई जमी हुई दिखती है, उसको ऐसे नॉर्मल भाषा में लोग काई कहते हैं, वो ग्रीनिश ग्रीनिश पूरा सरफेस को कवर कर लेता है, बट दैट इज योर फंगस। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई ऑल्सो 3 to 4 months कंटिन्यूअसली रेनी सीजन रहता है, and if there is leakage in the wall or if there is leakage in the washroom, you can easily see the fungus growing on the surface because this condition is appropriate for their growth. अगर मम्मा ने मिल्क में इनोकुलम डाल दिया, थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया, थोड़ा सा कल्चर जो पहले का दही था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया और उसको फ्रिज में रख दिया, तो क्या दही जमेगी, क्या कर्डिंग होगा? No, ma'am. बिकॉज फ्रिज के अंदर आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, और अभी मैंने बताया फॉर यीस्ट और अ फंगस दे नीड अ टेम्परेचर इन बिटवीन 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए मम्मा उसको बाहर रखती होगी, इज इट? कभी बाहर रखते हैं, और जब भी मम्मा उसमें इनोकुलम डालती हैं तो ऑब्जर्व करना वो उसका टेम्परेचर देखती हैं, ही और शी, अगर मम्मा करती है, पापा जिनको भी आता है घर में या दादी करती है, तो शी यूज टू पुट देयर फिंगर इन दैट, अगर ल्यूक वार्म मिल्क है तभी वो उसमें इनोकुलम डालेंगे, अगर बहुत ज्यादा गर्म दूध है, खौलता हुआ दूध है और उसमें आप इनोकुलम डाल दोगे तो वो सारे इनोकुलम किल हो जाएंगे, डेड होंगे, ग्रोथ होगा ही नहीं, वो ऐसा मिल्की जैसा ही रह जाएगा, थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर पे भी वो डिग्रेड हो गया, जो एंजाइम है, जो बैक्टीरिया है वो डिग्रेड हो गई। व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू हैव टू कीप चेक ऑफ योर टेम्परेचर, हमें जब भी फीवर होता है तो हमें टेम्परेचर का चेक रखना चाहिए, और टेम्परेचर कभी भी 101 से ऊपर गया तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। व्हाई? अगर टेम्परेचर 13, 14 चला जाएगा तो ऐसा क्या वो हमारे बॉडी में चेंज करेगा? Enzymes will be killed. Ma'am, enzymes in our body will be denatured. Yes, enzymes denatured हो जाएंगे और various functions in our body
various, ranging from your digestion to the various activities. जब भी हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फैटी एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पे बेस्ड हैं. तो एंजाइम्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि दे आर द बायोकैटलिस्ट. They enhances the rate of the various reaction without being used in the reaction, but they are highly sensitive to the temperature also. At a higher temperature 45 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो denatured हो जाता है, वो denature होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो shall I rub it and we'll move forward. हम दूसरे डायरेक्शन में चलेंगे. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं. ओके, और इन माइक्रोब्स को ग्रो करना इतना इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू द वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज. केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और भी जितने भी फील्ड्स है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जब भी हम ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म करते हैं ना, तो वो बहुत टीडियस होता है, वो बहुत मुश्किल